Hello everyone. So the question is two small balls having equal opposite charge Q on each suspended by two insulating string of equal length L from a hook fixed to the stand. The whole setup is taken in a satellite into space when there is no gravity, state of weightlessness, then tension in each string is. We have to calculate the value of tension in the string, and the situation is given like this. They are saying that there is a fixed hook, or suppose this is the fixed hook, and there are two charges which is having the equal amount. Suppose this is charge Q and the other charge is also Q, and the length is also same. Suppose this is L, so that means this is also L. Okay, now the weight of these point charges are acting perpendicular to acting vertically downward, that is mg. Similarly for this charge, the weight is acting vertically downward, that is mg. But and because of this weight there is tension in this string, that is T, and that is T. But now in the question they are saying that we take this whole setup into a space where there is no gravity. When there is no gravity, that simply means that the value of g, which is the acceleration due to gravity, is 0. That means this whole quantity is 0, mg equals to 0, mg equals to 0. Now the only force which is acting between these point charges will be electrostatic force, and this electrostatic force is repulsive electrostatic force, because both is having the same charge, and if the charges are same at that time, the electrostatic force is repulsive. And when the force is repulsive, that means this force is try to move these charges at the maximum distance. So now the position is look like this. This is Q, this is Q, and this is the center of hook, or I can say that this is the hook. Now this is the maximum distance between these charges because of the repulsive electrostatic force. This length is L and this length is also L. Okay, now the total distance between them is 2L and angle is 180 degree. Now in the question they are asking about the tension. Tension is basically equal to the force. So I can write the tension T equals to basically force is given by force or tension is the same thing. So basically it is K Q1 Q2 Q1 Q2 upon R square. Okay, product of Q1 Q2 upon square of the distance. So I will write tension equals to, and the value of K is basically 1 upon 4 pi epsilon naught. This is the value of K, which is the constant. Now I can write T equals to 1 upon 4 pi epsilon naught, and charges are, first charge is Q, second charge is Q, upon distance between them is 2L. L and L, it is 2L square. Simplifying this, we will have T equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q square upon 4L square. This is the tension in string, which is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q square upon 4L square. So let's check the option. The first option, no, it is 4 into 4. So basically it is 16. If I further solving this, I will have Q square upon 16 pi epsilon naught L square. 4 into 4 is 16. So this is the tension, that is equals to Q square upon 16 pi epsilon naught L square. So the last option, which is Q square upon 16 pi epsilon naught L square, is the correct answer. Okay, thank you. In this question, a ring of radius r carried a uniform distribution of charge plus q. A point charge minus q is placed on the axis of the ring at a distance 2r from the center of the ring and released from the rest. Okay, the particle execute a simple harmonic motion along the axis of ring. यही हमको मतलब कि ये स्टेटमेंट दिया है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें बताना है. ठीक है, तो देखिए हमने एक रिंग बना लिया. ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे एक रिंग बना लिया. ओके, और रिंग का जो एक्सेस है वो यहाँ से मैं ड्रॉ कर देता हूँ. ठीक है, और ये कितनी दूरी पे है, 0.4 माइनस क्यू.
जो ये माइनस क्यू चार्ज है वो 2r डिस्टेंस पे है। कितने 2r, और ये रेडियस कितना है, रेडियस है जो रिंग की वो है, जो रेडियस है रिंग की वो r है। ओके, तो यहाँ से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये रिंग की रेडियस जो है वो r है। ओके, तो देखिए ये क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज, और ये जो रिंग है वो पॉजिटिवली चार्ज है। क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं क्या करता हूँ कि डीएल एलिमेंट में कितना फोर्स लगेगा वो मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये देखिए यहाँ से मैं एक डीएल एलिमेंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर आएगी, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, तो एंगल ये मानता हूँ कि ये थीटा में बना रहा है। ठीक है, तो इसको क्या, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √5r। ठीक है, तो जो फोर्स लगेगा इस डीएल एलिमेंट में वो क्या लगेगा, dq चार्ज पे लगेगा, और कितना लगेगा, df लगेगा। df इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, ये माइनस q वाला, और इंटू dq डिवाइडेड बाई √5 r का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये फोर्स हमको किधर लगेगा, इंटू इंटू, और क्या होगा, ये df मैग्नीट्यूड हो गया। और देखिए यहाँ से इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ये होगा df cos थीटा होगा, और ये हो जाएगा इसके ठीक परपेंडिकुलर जो होगा तो क्या होगा, ये होगा df sin थीटा, df sin थीटा। अगर यहाँ भी एक एलिमेंट लेते हैं डीएल एलिमेंट और इस पे ऐसे डालते हैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या होगा, यहाँ पे भी एक एक और फोर्स का कंपोनेंट होगा df cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा df sin थीटा। ठीक है, तो ये df sin थीटा और df sin थीटा ठीक अपोजिट है। ठीक ना, वो कुछ इस तरह से बनाएंगे, कुछ इस तरह से बनाएंगे हम हर डायरेक्शन में। ओके, हर डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से बनाएंगे और अपने आप को कैंसिल आउट कर लेंगे। तो ये और ये कैंसिल हो गए, तो रिजल्टेंट फोर्स किधर लगेगा, सेंटर के तरफ, और वो क्या लगेगा, वो लगेगा df cos थीटा, और यहाँ पे मैं df का मैग्नीट्यूड रख चुका हूँ, तो df क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q dq बाई √5 r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। और कॉस थीटा यहाँ पे क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार 2r डिवाइडेड बाई कर्ण, कर्ण क्या है, √5r, तो ये हो जाएगा 2/5 √5। ओके, तो df cos थीटा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q dq बाई √5 r, ओके, स्क्वायर इंटू कॉस को, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2/√5। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि अब पूरे रिंग पे जो फोर्स लगेगा उसको निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, वो हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो F कैसे निकलेगा, F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2πr। ओके, यहीं पे यहाँ से अगर चलते हैं और एक चक्कर लगाते हैं तो कितना चलेंगे, 2πr चलेंगे। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q dq बाई √5 r होल स्क्वायर इंटू 2/√5। ओके, और इस dq को निकाल सकते हैं। देखो dq dl एलिमेंट में कितना है, dl इज इक्वल टू क्या होगा, q चार्ज है रिंग पे, डिवाइडेड बाई 2πr इंटू dl हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये इतने इतने एलिमेंट में, मतलब dl एलिमेंट में जो चार्ज है वो इतना हुआ। ओके, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि ये dq के इक्वल होगा।
ठीक है। तो डी क्यू इज इक्वल टू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई √5 r होल स्क्वायर इंटू 2/√5 और डी क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, डी क्यू की वैल्यू है क्यू डी एल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 पाई r हो जाएगा। ओके, और अच्छी बात यह है कि डी एल जो है, डी एल क्या है, डी एल की वैल्यू क्या होगी, डी एल इज इक्वल टू 2 पाई r ही तो होगा, सरकमफेरेंस ऑफ रिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हम क्या कर रहे हैं, रिंग का ही छोटा छोटा एलिमेंट जो डी एल लिया उसी को ऐड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई √5 r होल स्क्वायर इंटू 2/√5 इंटू क्यू बाई 2 पाई r इंटू क्या हो जाएगा 2 पाई r, 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हो जाएगा। और ये देखिए ये आ रहा है हमारा 2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन, और ये क्या हो जाएगा √5 इंटू 5 r²। ओके, और ये जो फोर्स का एक्सप्रेशन आ रहा है वो प्रोपोर्शनल टू है 1/r², न कि f इज प्रोपोर्शनल टू r माइनस r। तो जब f इज प्रोपोर्शनल टू माइनस r रहता तब हम बोलते कि ये जो पार्टिकल है वो SHM कर रहा है, लेकिन ये f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, तो ये पार्टिकल SHM नहीं कर रहा है। ठीक है, एक और जनरल चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जब पार्टिकल को ना इस सेंटर से काफ़ी दूर रख देने पे ये SHM नहीं करता है। SHM करने के लिए जो r की वैल्यू है वो बहुत ही स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कभी कभी आप इजीली इसको बता सकते हैं कि बहुत दूरी पे है, जैसे 2r यहाँ पे है तो ये बहुत दूर हो गया, क्योंकि रेडियस ही जो ये सर्कल है इसका रेडियस ही क्या है, r है। अब r के कंपेयर में 2r बहुत दूर हो गया, तो इसलिए ये SHM नहीं कर रहा। अगर पास में होता r/2 होता, r/4 होता तो ये जरूर SHM करता। ओके।